So, Bismillahirrahmanirrahim. In today's class, we're going to discuss the phrase, the prepositional phrase use of, or I would say use of. I mean, you can either pronounce the Z sound use of when it is verb, or when it is used as a noun, then you can say use of, like not Z sound. You can pronounce the S sound, use of. But anyways, in flow, everybody pronounces it use of. So we're going to discuss about this phrase, how we use. So the basic usage of this phrase use of is often used to express the practical benefit or point in doing something. The practical benefit in doing something or the practical point in doing something. Because sometimes we do something uh, pointlessly. I mean, there is no point or there is no benefit of doing that particular action. But when there is a point of doing something, and when maybe you want to ask someone that what exactly is the benefit of doing something and what exactly is the point of doing some action, so we use this phrase user. And what exactly is the Urdu identification of this phrase user is desh karne ka desh fayda hai. And let me tell you one more thing, that this phrase use of is used mostly in interrogative sentences and in the negative sentences. You would find it very rarely in the affirmative sentences. Like it is mostly used in interrogative sentences and negative sentences, but rarely in affirmative sentences. इसका मतलब है कि ये यूज ऑफ जो फ्रेज है, ये आमतौर पर हम वहां इस्तेमाल करते हैं जब हम ये बताना चाह रहे हैं कि फला काम करने का क्या फायदा है, बेनिफिट है, और उस काम करने का पर्पस क्या है। या फिर हम ये पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि फला काम करने का क्या फायदा है या क्या उसका पर्पस है, या फला काम करने का कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव जुमलों में कोई फायदा नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। तो पर किसी एक्शन करने का फायदा या पॉइंट यानी रीजन बताने के लिए या रीजन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है डैश करने का डैश फायदा है, और अगर सवालिया होगा तो इसकी उर्दू होगी क्या फला काम करने का या क्या फला एक्शन करने का या फला एक्शन करने का क्या फायदा है, या क्या फला एक्शन करने का कोई फायदा है, क्या फला काम करने का कोई फायदा है। जैसे क्या इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का कोई फायदा है, फिर हम जवाब में बताएंगे जी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का बहुत फायदा है, या हम बताएंगे जी फला काम करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जैसे फजूल बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो उन जुमलों में ये यूज ऑफ का इस्तेमाल होता है। सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूज ऑफ and then how we put in our sentences, how we use it in our sentences in the next slide. All right. So now there are three structures, as you can see on your computer screen. One is the structure of an interrogative sentence. The second is negative, or the third is affirmative sentence. Why I made the interrogative structure first and then negative and then affirmative in the end, because as I told you earlier that this phrase use of is used in affirmative sentences very, very rarely. Mostly it is used in interrogative sentences and then negative sentences, and sometimes it is used in affirmative sentences, right? पहले मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव फिर अफर्मेटिव इसलिए रखा कि सबसे ज्यादा ये यूज ऑफ जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है कि क्या फलां काम करने का कोई फायदा है, क्या वहां जाने का कोई फायदा है, क्या उससे बात करने का कोई फायदा है। फिर उसके बाद ये नेगेटिव में होता है नो यूज ऑफ, नो यूज ऑफ, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, फजूल बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और कभी कभार जो है फिर ये यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जब हम बताते हैं कि फलां काम करने का थोड़ा फायदा है, बहुत फायदा है, इस तरह के जुमले। ऑलराइट, सो in interrogative sentences we use is there or is it,
यानी हमारा सब्जेक्ट सिर्फ देयर होगा या फिर इट होगा, इन दोनों के अलावा हम कोई और सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते. वी कैन ओनली यूज, व्हेन वी टॉक अबाउट यूज ऑफ, वी कैन यूज ओनली दीज टू सब्जेक्ट्स, देयर और इट. इज देयर और इज इट एनी यूज ऑफ. अच्छा, इंटेरोगेटिव में हम एनी लगाएंगे यूज ऑफ से पहले हमेशा. इज देयर या फिर वाज देयर, यानी यहाँ पे इज की जगह वाज भी आ सकता है, और फ्यूचर में विल भी आ सकता है. विल, देयर या फिर इट, एनी यूज ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एन ऑब्जेक्ट एंड देन द क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव जुमले में हमारा देयर या इट जुमले के स्टार्ट में आएगा, एंड देन वी यूज इज और वॉज, और अगर फ्यूचर की बात होगी तो विल आ सकता है, विल बी आएगा. नो यूज ऑफ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एन ऑब्जेक्ट. और affirmative sentences के अंदर, in affirmative sentences we use there or it as subject, and then is or was or in the future will be. फिर कोई एडजेक्टिव ज्यादातर इसमें दो आ सकते हैं, मच या फिर बिट. अ बिट, आ बिट, थोड़ा, थोड़े के लिए a bit या फिर a little, a bit या फिर a little, और ज्यादा के लिए much. उसके बाद यूज ऑफ, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सही है. Now, see examples. There are 9 examples, and I'm sure after these 9 examples, the picture would be quite clear that how we use and where we use this use of. Number one is, there is no use of crying over spilled milk. ये एक idiom भी है, इसका मतलब है, एक इसकी idiomatic meaning ये है कि अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई दाना. यानी दूसरी इसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग ये है कि देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. जब दूध गिर गया हो, जिसको गिरना है, दूध को गिरना था, वो गिर गया, अब उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है. देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग, रोने का कोई फायदा नहीं है, ओवर स्पिल्ड मिल्क, गिरे हुए दूध पे जो दूध गिर गया, अब उस पर पछताने का, रोने का कोई फायदा नहीं है. देयर इज नो यूज ऑफ ट्राइंग टू चेंज हिज माइंड. उसका दिमाग चेंज करने का या उसकी सोच को तब्दील करने का कोई फायदा नहीं है. There is no use of arguing with her. She is always right. उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, वो हमेशा सही होती है. उसको लगता है कि वो हमेशा से सही ही होती है, राइट ही होती है. ये 3 एग्जाम्पल हो गए नेगेटिव के. नो यूज ऑफ, नो यूज ऑफ, नो यूज ऑफ. अब आते हैं इंटेरोगेटिव. इज देयर एनी यूज ऑफ ट्राइंग टू फिक्स दिस ओल्ड कार? इट्स बियॉन्ड रिपेयर. क्या ये पुरानी कार को सही करने का, रिपेयर करने का कोई फायदा है? इट इज बियॉन्ड रिपेयर. ये अब बनने की हालत से बहुत दूर चली गई है, यानी अब इसको रिपेयर नहीं कराया जा सकता, रिपेयर करने से बहुत दूर चली गई है अब. नंबर 5, आई डोंट सी एनी यूज ऑफ गोइंग टू. अच्छा, इसमें इस तरह का भी सेंटेंस हो सकता है, देयर इज नो यूज ऑफ, लेकिन उसने ऐसा भी कर दिया कि आई डोंट सी. ये भी हो सकता है पॉसिबल. आई डोंट सी एनी यूज ऑफ गोइंग टू दैट रेस्टोरेंट. द फूड इज टेरेबल. आई डोंट सी, मुझे नहीं नजर आता, एनी यूज ऑफ गोइंग टू दैट रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट पे जाने का कोई फायदा मुझे नजर नहीं आता. द फूड इज टेरेबल, फूड वहां का बड़ा ही बेकार है, बहुत ही बेकार खाना है, और मुझे नहीं नजर आता वहां जाने का कोई फायदा. मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता उस रेस्टोरेंट जाने का. उसके बाद है, इज देयर एनी यूज ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी? इट इज नॉट प्रॉफिटेबल. तो पूछ रहा है कि इज देयर एनी यूज ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी? क्या इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फायदा है, सवाल कर रहा है. फिर कहता है इट्स नॉट प्रॉफिटेबल. ये जो है बिल्कुल भी मुनाफा बख्श नहीं है. नंबर 7 देखिएगा. अब ये 3 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ये अफर्मेटिव के होंगे, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं. which I already said that in affirmative sentences you would rarely see this structure, this phrase. There is much use of learning a second language in today's globalized world. आजकल की जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इसमें अंग्रेजी सीखने का या सेकंड लैंग्वेज सीखने का बहुत ज्यादा फायदा है. हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश ही होती है आमतौर पर. तो ये कह रहा है कि सेकंड लैंग्वेज सीखने का बहुत ज्यादा फायदा है आजकल की इस दुनिया में, जो कि ग्लोबलाइज्ड हो गई, यानी बहुत छोटी हो गई है. इंटरनेट ने और इस कम्युनिकेशन मीडिया ने, हमें सोशल मीडिया ने हमारी पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना के रख दिया, छोटा सा ऐसा, जिसमें हर बंदा दूसरे को अच्छे तरह से जानता है, और हर बंदा दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है उस मालूमात को बड़े अच्छे से जानता है. इसको कहा जाता है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, यानी ग्लोबल विलेज भी कहते हैं, कि यानी पूरी दुनिया एक गांव बन गई है, कि जैसे एक गांव में एक दूसरे के बारे में
Everybody knows about one another in the village, that what happened in that particular person's house, who died, what's going on around. तो एक गांव में हर बात का एक दूसरे को पता होता है. तो पूरी दुनिया भी आजकल एक गांव बन चुकी है सोशल मीडिया के आने के बाद. So sentence number 8 is, there is little use of exercise in maintaining good health. ठीक है, इसमें लिटिल की जगह मच भी लगाया जा सकता है कि देर इज लिटिल यूज ऑफ, मैं कहता हूँ यहाँ पे मच आना चाहिए, देर इज मच यूज ऑफ एक्सरसाइज एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ. अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करने का बहुत फायदा है. देयर इज मच यूज ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा फायदा है. इस एक्सरसाइज में आईएनजी इसलिए नहीं लगाया कि जहां जहां स्ट्रक्चर में यू कैन सी मैंने आईएनजी लगाया है, अगर ये वर्ब की फॉर्म ना हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है. जरूरी नहीं है कि ये वर्ब की फॉर्म आए. बाज़ औक़ात वर्ब नहीं, डायरेक्ट नाउन आ जाएगा इस जगह पर. जैसे आप सेंटेंस नंबर 8 में देखें, देयर इज लिटिल यूज ऑफ एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज की जरूरत है. यूज ऑफ के बाद आपने नाउन लगाया. अगर आप यहाँ ये भी कर सकते थे कि देयर इज लिटिल यूज ऑफ एक्सरसाइजिंग, तो भी ठीक होता, लेकिन नाउन भी चलेगा. ठीक है जी. नंबर 9 को देखते हैं. देयर इज मच यूज ऑफ मेडिटेशन इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी. तो वो कहता है कि अपनी स्ट्रेस को, अपने तनाव को और अपनी बेचैनी और परेशानी को कम करने में मेडिटेशन का बहुत ज्यादा फायदा है. मेडिटेशन का बहुत ज्यादा, जो मेडिटेट करते हैं ना, सो मेडिटेशन करने से आपके स्ट्रेस को, एक ऐसा अमल है जिसमें आप मतलब पर्टिकुलरली किसी एक सोच में अपने आप को फेंक देते हैं, खामोश हो जाते हैं और किसी खास पोजीशन में बैठ जाते हैं और अपने दिमाग को किसी एक पर्टिकुलर सोच की तरफ लगा देते हैं और कुछ पढ़ते रहते हैं. कुछ मेडिटेशन कहते हैं शायद उसको. और उससे कहा जाता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर किया जा सकता है, रिड्यूस, कम से कम किया जा सकता है. सो देयर इज मच यूज ऑफ मेडिटेशन इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस एंड एंजाइटी. के मेडिटेशन का बहुत फायदा है अपना ज़हनी तनाव और अपनी बेचैनी को कम करने के लिए. So I'm sure after these 9 examples, you have very well understood this phrase user, which is mostly used in interrogative sentences and negative sentences, but sometime in the affirmative sentences. तो आपको 9 sentences के बाद मुझे यकीन है कि use of इस phrase का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल आ गया होगा. और अब एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं कि आप कितने अच्छे सेंटेंसेस बनाते हैं. Now there are some sentences that you have to complete. एक सेंटेंस है, इज देयर एनी यूज ऑफ, आपने इसको कंप्लीट करना है. दूसरा है, व्हाट वाज देयर एनी यूज ऑफ, आपने इसको कंप्लीट करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, एंड आई विल गेट बैक टू यू. तीसरा है, देयर इज नो यूज ऑफ, कंप्लीट करें सेंटेंस को. चौथा है, देयर वाज नो यूज ऑफ, कंप्लीट करें सेंटेंस को, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू. पांचवा है, देयर इज मच यूज ऑफ, अफर्मेटिव है, इसको भी कंप्लीट करें. 6 है, इज देयर एनी यूज ऑफ, उसके बाद आप सेंटेंस को कंप्लीट करें. फिर है, देयर इज नो यूज ऑफ, आप कंप्लीट करें सेंटेंस को. वाज देयर एनी यूज ऑफ. फिर है, देयर इज लिटिल यूज ऑफ, यानी थोड़ा फायदा है, किस क्या करने का, या आप बताएं. एंड लास्ट है, देयर इज मच यूज ऑफ, उसके बाद आप बताएं कि क्या करने का है, किस चीज का फायदा है करने में. तो ये हैं आपके पास 10 sentences. You can just make your sentences and drop your write your sentences in the comment section and I'll get back to you. Till then, at the next video, take the very best care of yourself. Bye bye.